Good morning, students. As we have discussed last class regarding the teacher education paper for MEd students, in this series, today we'll talk in a paper of MEd, Perspective in Teacher Education. Under that, we'll discuss professional development of a teacher. This part we'll discuss in a two-part. Today, I am dealing the first part. So, under the professional development of a teacher, first we have to learn why it is required. So, we know that a teacher have to be a professionally developed continuously. Continuously, the teacher has to develop regarding their professional development. Under that, very clear-cut first definition, Talim William has said about that every teacher needs to improve not because they are not good enough, but because they can be even better. So very clear cut he said. So under the importance of education is very quite clear by giving a 5 statements. So first one is education is the knowledge of putting one potential to maximize use. So a person, if they want to maximize use of their potential, it means they are using their education in a maximum part. It is connected to the second statement. One can safely say that a human being is not in a proper sense till he is educated. आप जानिए कि यहाँ पर ह्यूमन बीइंग तभी अच्छे ह्यूमन बीइंग कहला सकते हैं जब तक वो एडुकेटेड नहीं है इन अ ट्रूली सेंस. Third is a connected part. The quality of a nation depends upon the quality of the citizen. So, अगर किसी राष्ट्र की क्वालिटी के बारे में परिकल्पना करनी है तो उसके लिए आप क्वालिटी सिटीजन, क्वालिटी के रूप में नागरिक का होना आवश्यक है. So the quality of citizen rests upon the quality of their education. अगर आप क्वालिटी ऑफ सिटीजन चाहते हैं, क्वालिटी नागरिक चाहते हैं, तो ये टोटली डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. And the quality of education depends upon the competency, dedication, and quality of a school teacher. So quality of education is totally said about the teacher's competency, dedication, and the quality. So under that we have to learn regarding the role of a teacher. Under the role of a teacher, the source of true and holistic education is the teacher. If you will say the holistic source कौन है यहाँ पर? Teacher. So teacher in Indian heritage has always been given a raised platform of respect. जहाँ तक आप जानते हैं कि हमारे यहाँ शुरू से ही आदिकाल से ही शिक्षकों को परम स्थान दिया गया है, सर्वोच्च स्थान दिया गया है. So apart from imparting education to children, the teacher has been a friend, guide and philosopher. हम लोग सभी जानते हैं कि शिक्षक तो बच्चों को पढ़ाते ही हैं, वो साथ साथ शिक्षक विद्यार्थियों के एक फ्रेंड के रूप में, एक गाइड के रूप में, एक फिलोसोफर के रूप में जाने जाते हैं. So teachers are regarded as the most powerful agent of social change. सोशल चेंज के लिए मुझे अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एजेंट कौन माना जाता है तो टीचर. स्वामी विवेकानंद ने अपनी बातों में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन. सो एजुकेशन एलोन मेक्स ए मैन परफेक्ट. सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही है जो मनुष्य को परफेक्ट बना सकता है. और परफेक्ट ही नहीं, एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी इज पॉसिबल थ्रू एजुकेशन. मनुष्य के सर्वांगीण विकास की अगर आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है. तो इस बातों को आप समझ रहे हैं. सो टीचर
have the responsibility of shaping the future of the nation. इस बात से क्लियर हो जा रहा है कि शिक्षक के पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग द शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द नेशन. And the future of nation depends upon the skills and efficacy of the teacher. Teacher are given the other name, the creator. Teacher को क्या नाम से जाना जाता है? Creator के रूप में. They are the creator of whom? Philosopher, leader, doctor, banker, advocates, and so many. We can say that teacher is a main creator of all department. So teachers work involves rigorous effort in the classroom. टीचर्स क्या करते हैं क्लासरूम में? रिग्रेस काम करते हैं विद्यार्थियों के ऊपर. और सिर्फ क्लासरूम में नहीं, आउटसाइड भी बहुत सारे काम करते हैं. दे हैव टू फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स एंड द कम्युनिटी मेंबर. तो फॉर दिस पर्पस टीचर नीड्स टू बी वेल ट्रेन. अगर शिक्षक को क्लासरूम में भी पढ़ाना है, समाज में उनके माता पिता से भी मिलने हैं, बच्चों के कम्युनिटी मेंबर से भी मिलना है, तो डेफिनेटली ये बात निकल के आती है कि शिक्षकों को वेल ट्रेंड होने की आवश्यकता है. ठीक है, किसके लिए? तो फॉर दिस पर्पस टीचर नीड्स टू बी वेल ट्रेन्ड एंड कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म देयर जॉब. If teacher acquire professional competencies and commitment, and if they are enabled and empowered to perform their multiple tasks in the classroom as well in the school and community in a generally professional manner, then the teacher can produce quality learner. Okay. So Michael Fullan has said very clearly the purpose of staff development is not just to implement instructional innovation. Its central purpose is to build strong collaborative work culture that will develop the long-term capacity for change. So we have understood the role of a teacher. Now we will proceed the main point, that is a professional development. So we have to know about the meaning of professional development. In education, the term professional development may be used in reference to a wide variety of specialized training. वाइड वैरायटी यानी कि विभिन्न प्रकार के स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ, और एडवांस प्रोफेशनल लर्निंग इंटेंडेड टू हेल्प एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर एंड अदर एडुकेटर to improve their professional knowledge, competence, skill and effectiveness. Okay, so टीचर कॉम्पिटेंसी क्या है? बीके पासी ने साफ साफ अपने बातों में कहा है कि व्हाट इज टीचर कॉम्पिटेंसी. सो टीचिंग कॉम्पिटेंसी मीन्स एन इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेबल टीचर बिहेवियर. यानी कि सारे ऑब्जर्वेबल टीचर बिहेवियर का वो डिपेंड कर. टीचिंग कॉम्पिटेंसी मीन्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेबल टीचर बिहेवियर दैट ब्रिंग अबाउट डिजायर पीपल आउटकम. यानी कि ये साफ शब्दों में कहा गया है ना बीके पासी ने कि टीचिंग कॉम्पिटेंसी क्या है? इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेबल टीचर बिहेवियर. टीचर के सारे बिहेवियर कहाँ दिखेंगे, है ना? तो पीपल्स के आउटकम में देखेंगे. बच्चों के जो रिजल्ट आएंगे उसी में ही टीचर के परफॉर्मेंस नजर आएंगे, टीचर के ऑब्जर्वेबल बिहेवियर नजर आएंगे. तो आप बच्चों के आउटकम में देखेंगे. इस मीन्स कि टीचर को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंसी की आवश्यकता है. तो अभी निम्नलिखित कुछ कॉम्पिटेंसीज की चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे. फर्स्ट कॉम्पिटेंसी आती है कॉन्टेक्चुअल कॉम्पिटेंसी. सर्वप्रथम आप कह सकते हैं कि इंक्लूड्स नॉट ओनली एजुकेशनल बट सोशल एंड कल्चरल सिस्टम ऑल्सो. यानी कि शिक्षक को, है ना, क्या करना है? तो कॉन्टेक्चुअल मालूम होना चाहिए. किस समाज में, किस कल्चर में, किस संस्कृति और किस सामाजिक
प्रवृत्ति में जगह में आप उनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसकी क्या सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट उसको जानने की आवश्यकता है। यानी इट इंक्लूड्स डीलिंग विद प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, डेवलपिंग cohesive society and issues like urbanization and value inculcation. यानी first one is contextual competency, context को जानने की आवश्यकता है। Second is conceptual competency. In a conceptual competency includes knowledge about stages of child development, यानी बच्चों के वृद्धि विकास को जानने की आवश्यकता, यानी कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बच्चों की जानने की आवश्यकता है। राइट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स एजुकेशन एंड इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन, ये दो मुख्य कॉम्पिटेंसीज हुए। इसको आगे बढ़ाते हुए देखेंगे, तीसरी कॉम्पिटेंसी निकल के आती है, दैट इज कंटेंट कॉम्पिटेंसी। सबसे प्रायर इंपॉर्टेंस निकल के आती है कि शिक्षक को अपने कंटेंट पे कमांड होना चाहिए। जिस विषय वस्तु को शिक्षक डील कर रहे हैं उस विषय वस्तु के कंटेंट को शिक्षक को मालूम होना चाहिए। इंक्लूड जॉयफुल एक्टिविटीज, मीडिया इंटरवेंशन, इंडिविजुअल लर्निंग एंड प्रोविजन ऑफ इनरिचिंग इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि कंटेक्स्ट की जानकारी होनी चाहिए। जॉयफुल एक्टिविटीज मालूम होना चाहिए, इंडिविजुअल लर्निंग एंड प्रोविजन ऑफ इनरिच्ड इन्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ती है, यानी कंटेंट की जानकारी होनी चाहिए। फोर्थ वन इज ट्रांजैक्शनल कॉम्पिटेंसी। शिक्षक को सिर्फ अपने नॉलेज को केवल परिपूर्ण नहीं होने चाहिए, उसको ट्रांजैक्ट करने को, दूसरे को किस प्रकार प्रदान करेंगे उसके लिए भी उनको मालूम होना चाहिए। सो इंक्लूड प्लानिंग ऑफ एक्शन एंड इवैल्यूएशन, है ना, इंक्लूजन ऑफ एक्टिविटीज लाइक स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग, है ना, एटसेट्रा इन टीचिंग प्रोसेस, यानी सारे मेथड की जानकारी हमारे टीचर को होनी चाहिए, वो हमारे ट्रांजैक्शनल कॉम्पिटेंसीज के अंतर्गत आते हैं। फिफ्थ वन इज कॉम्पिटेंसीज रिलेटेड टू अदर एजुकेशनल एक्टिविटीज, यानी इसमें निकल के आता है कि शिक्षक को सिर्फ पठन पाठन के अलावा अन्य सारी गतिविधियां की भी जानकारी होनी चाहिए। लाइक इंक्लूड ह्यूमन वैल्यूज, एजुकेशन ह्यूमन वैल्यूज किस प्रकार इनकलकेट करेंगे, सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल इवेंट, बहुत सारे नेशनल इवेंट होते हैं उसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कम्युनिटी लाइफ एक्टिविटीज़ कैसे सेलिब्रेट करेंगे, यानी इसकी भी कॉम्पिटेंसीज की जानकारी विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षक को होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट वन इज छठा है कॉम्पिटेंसीज टू डेवलप टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इंक्लूड innovative way to teaching and local visit to bank and other community resources, preparation of teaching aids, यानी शिक्षक को आपको क्या करना है, टीचिंग एड्स की भी जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार वो टीचिंग एड्स बना पाएंगे। यानी अभी कितना हुआ, 6 कॉम्पिटेंसीज हुआ। सातवां है इवैल्यूएशन कॉम्पिटेंसी, शिक्षक को मूल्यांकन करने के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, किस प्रकार कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करेंगे। सिर्फ मूल्यांकन ही नहीं, उसके साथ साथ उसको फीडबैक किस प्रकार देंगे बच्चों को, ये भी उसकी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। एट्थ वन इज मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी, इंक्लूड स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, जब शिक्षक कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं तो कक्षा प्रबंधन की भी जानकारी होनी चाहिए। जब तक कक्षा शांत नहीं रहेगा और आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुनेगा तब तक आपके क्लास व्यवस्थित नहीं होंगे। सो इंक्लूड स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर, ठीक है। नाइन्थ वन इज कॉम्पिटेंसीज रिलेटेड टू वर्किंग विथ पेरेंट, इंक्लूड रोल ऑफ अ पेरेंट and requirement of their cooperation in teaching learning process, यानी कि आप किस प्रकार बच्चों के साथ साथ बच्चे के पेरेंट्स के साथ डील करेंगे उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए।
समाज के लोगों से किस प्रकार आप डील करेंगे उसकी भी कॉम्पिटेंसीज आपको होनी चाहिए। एंड लास्ट वन इज competencies related to working with community and other agencies, and includes the knowledge about importance of a community in holistic development of the students। यानी बच्चों के साथ साथ आप समाज के कम्युनिटी के लोगों के किस प्रकार आप डील करेंगे उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये सारी बातें टीचिंग कॉम्पिटेंसीज की हुई जो कि एक शिक्षक को होना चाहिए, और ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर टीचिंग कॉम्पिटेंसीज की चर्चा हुई। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि प्रोफेशनल कमिटमेंट क्या है। आप जब कॉम्पिटेंसीज है तो कमिटमेंट क्या है। तो प्रोफेशनल कमिटमेंट का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ dedication among the individual of a group towards their profession। The feeling of dedication among the individual of a group towards their profession। आपकी फीलिंग, आपका डेडिकेशन है ना among the individual। इसमें एरिया ऑफ कमिटमेंट की चर्चा करेंगे। इस एरिया ऑफ कमिटमेंट में फर्स्ट एरिया आता है कमिटमेंट टू द लर्नर। Children need teachers who understand them and their needs with sensitivity। They need to be looked after by teachers who understand their instinct, learning needs and tendency along with their capacity and abilities। By making up the profession of a teaching, the teacher is placed to progress and development of a learner। So टीचर का फर्स्ट मोस्ट कमिटमेंट किसके लिए चाहिए? विद्यार्थियों के लिए चाहिए। सेकेंड जो है कमिटमेंट टू द सोसाइटी। The school and community have symbolic relation between them। Teacher need to be orient community towards the importance of education as a lifelong process and also motivate them to take it in that perspective। Teacher needs to be have developed concerned community towards the community। टीचर का काम क्या है? कमिटमेंट टू द लर्नर के साथ कमिटमेंट टू द सोसाइटी भी होने की आवश्यकता है, और टीचर का कमिटमेंट टू द प्रोफेशन भी होने की आवश्यकता है, क्योंकि committed professional should adopt various innovative methods of teaching, taking into consideration how best to learn and bring about the effective learning। मेन प्रायर कमिटमेंट क्या है? टू द प्रोफेशन। किस प्रकार आप बच्चों के साथ डील करेंगे, किस प्रकार आप इफेक्टिव लर्निंग करेंगे, ये कमिटमेंट होने की भी आवश्यकता है। उसके बाद है दैट इज अ कमिटमेंट टू द attaining excellence for professional action। So teacher who continue their search for becoming better human being and better teacher are followed in their footstep by the learner। अगर उस शिक्षक के मार्गदर्शन में अगर बच्चे चलें तो आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छा करता है। They get all the respect from them and at the same time acquire higher level of the excellence and proficiency। So commitment to the basic value। एक और कमिटमेंट है every community है ना expect the teacher to follow a value based approach in their personal life so as to become रोल मॉडल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सो यहाँ हम लोग देखें कि चार कमिटमेंट टू द लर्नर, कमिटमेंट टू द प्रोफेशन, कमिटमेंट टू द सोसाइटी, कमिटमेंट टू द अटेनिंग एक्सेलेंस एंड कमिटमेंट टू द वैल्यू, ये सारे कमिटमेंट है। सो आज हम लोग चर्चा किए कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में है ना टीचर की कॉम्पिटेंसीज और टीचर के कमिटमेंट क्या क्या है, ये सारे चीज़ की चर्चा हुई। इसकी आगे की चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझे होंगे, है ना। इसमें जो भी दिक्कतें आई होंगी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली एंड गिविंग प्रीशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।